ये वीडियो देख के इवन वन स्टूडेंट कैन परफॉर्म वेल इन एग्जाम और वो मोटिवेट हो जाए, तो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारी कम्युनिटी में से अगर कोई करता है, मतलब ऐसे एग्जाम क्रैक करता है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। मतलब मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं 190 प्लस तो टिक करूंगा ही, 190 प्लस कुछ भी हो, कैसा भी पेपर हो। बट एग्जाम हॉल में मैंने सभी टिक कर दिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन में मतलब मुझे पता था कि मैंने Yes. कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम होती है, नीट पीजी हो या यूजी हो, उसमें मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके पास नॉलेज नहीं है इसलिए आपका रैंक कम आया। उसमें बहुत से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लाइक ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपका माइंडसेट क्या था, आपका मतलब अगर आपको एक कॉमन कोल्ड भी होता है तो भी थोड़ा इफेक्ट आता है। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये मेरे इंटरव्यू में से आप जो भी आप सीखे, तो उसको डायरेक्ट मत अप्लाई करो, क्योंकि जो Nice. मेरे लिए सही था वो आपके लिए सही ना भी Yes. हो। ठीक है, क्योंकि सबकी अलग पैटर्न होती है। Pattern होती हाँ, है. अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है आप सीख सकते हो, बट कभी भी किसी को ब्लाइंडली मत फॉलो My name is Chinmay Anand, and you have started watching my channel Earthly Existence. We are in the episode 3 of Podcast with Earthly, and today our guest is Dr. Meet Joshi. My name is Meet Joshi. I have done my MBBS from Penza State University in Russia. And recently I cleared NEET PG exam with marks of 665 and I got a rank of 163. My first question is, what was your first reaction after seeing your result? Have you ever thought कि FMG graduate है तो इतना बड़ा dream achieve कर पाएंगे कि नहीं? देखो, इनिशियली ड्यूरिंग अंडर ग्रेज ऐसा थोड़ा थिंकिंग था मेरा स्टार्टिंग में, लाइक सिंस टू द लास्ट ईयर। But then I found that many FMGs were clearing this exam, even USMLE and MRSP, MRCS lab also. So I was getting confident that yeah, we can definitely do it. And then I was always thinking positively that yes, we can do it. It doesn't matter that whether you're FMG or you're from private college or you're from government college. It doesn't matter. All what matter is that hard work, that you have to do work hard and work smartly, and you can do anything. Any exam you can clear. It doesn't matter that from whichever university or. Sir, what was your biggest fear during PG preparation? There were many fears. Yeah, but the biggest fear you're asking that it was that about the PG. Yeah, I was not sure that will I get PG seat or what. Actually, I was not even sure that will I do PG from India or abroad or from another country. So yeah, it was the biggest fear, because for MC I was pretty sure that I will do it in Yeah. first attempt. But the biggest fear was about the PG preparation. Yeah. So, what was your source of motivation? Who was your idol? Not any single person. Many people were motivation for me, but you know that the person named Dr. Milind Shinde, he had secured very good rank in AIMS, so he was a really great example for me to. Yeah, and another person which I found last year, he cleared NEET 2020 with a rank of somewhere around 2000 something was his rank, and I talked to him like you are doing with me, and Yes, sir. and took guidance that how to prepare and so on. So it motivated me a lot, definitely. So, how did you manage your PG studies preparation side by side while doing MBBS at Russia? Because we know the syllabus differs a lot. Yeah, देखो, I may not be right, but if I talk about me myself, that initially in the starting years, like till third year, you should not think about PG seat or something like that, because तब हमारा माइंड थोड़ा नैरो हो जाता है कि यही एग्जाम देनी है, तो इसमें क्या होता है पता फिर कि उसमें जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं हम वही पे फोकस करते हो, बाकी टॉपिक नहीं देखते, मतलब हमारा माइंडसेट पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है। तो आई थिंक इट्स नॉट गुड in the beginning phase of our preparation. So earlier, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में तो हमको जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, जो टीचर वहाँ पे लेक्चर लेते हैं। अगर कोई टॉपिक अपने को लगे कि वीक है तो वो थोड़ा पढ़ना चाहिए, टीचर से डिस्कस करना चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए स्टार्टिंग में। कोई एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मत करो। हाँ, और थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर में आप कर सकते हो, मतलब क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, वो आप तब फोकस कर सकते हो। और ये बहुत इजी हो जाता है अगर आप स्टार्टिंग से कंसेप्ट क्लियर करते हो, पेशेंट देखते हो थर्ड ईयर में, तो बहुत इजी हो जाता है तो कोरिलेट विद प्रैक्टिकल एंड थियरी। Which subjects were tough for you and which were easy to go during preparation?
See, Chinmay, it was not like that. This subject is tough and this is the yeah. Yeah. There were topics among all the subjects that were difficult. It's not like that. Yeah, what I said. कोई एक सब्जेक्ट पूरा हार्ड या इजी नहीं था. सभी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक थे जो टफ थे और कुछ इजी थे. एक्चुअली मेडिसिन तो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए स्टार्टिंग से ही. बट हाँ, थोड़ा बॉर्डम मुझे बायोकेम में आता था. Yes. क्योंकि जो साइकिल्स होती है मतलब बहुत मतलब होता था उसमें फैक्ट्स बहुत थी तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता पढ़ने में. क्योंकि मेडिसिन और सर्जरी कैसा है कि आपको मतलब पूरा कंसेप्ट से चलता है. ठीक है, तो आप उसमें थिंग्स बहुत कोरिलेट करते हो. ऐसा नहीं, बायोकेमी भी कर सकते हो बट उसमें बहुत सारी फैक्ट्स होती है. आप मतलब अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आज आपको मजा आएगा पढ़ने में. बायोकेम भी इट्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बट आफ्टर फ्यू डेज यू विल थिंक दैट मैंने पढ़ा भी था ये सब्जेक्ट ऐसा होता है. Yeah. So the next question, sir. Hours of studying, apart from university classes and lecture, time management, because our university work is sometimes hectic, because sometimes we may have morning postings or any stuff comes in out of bloom. So how did you manage that to do that thing? देखो हमारी यूनिवर्सिटी में कैसा था कि आफ्टर थर्ड ईयर हमको साइकिल होती थी सभी सब्जेक्ट की क्लिनिक्स में. लाइक अभी न्यूट्रिनी बायोलॉजी मतलब मेडिसिन की साइकिल है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी ऐसा होता था. तो तब टाइम बहुत मिलता था हमको. मतलब बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टाइम, बट हम मैनेज कर लेते थे. तो या थर्ड ईयर तक आपको तो पीजी के लिए कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, कि हम पीजी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी पे फोकस करना है. जो भी वहाँ टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप वहीं पे फोकस करो. बट आफ्टर थर्ड फोर्थ ईयर या आपको थोड़ी प्रायोरिटी तब आपको देनी पड़ेगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. यूनिवर्सिटी तो पास करनी एग्जाम वो तो है ही, बट पीजी के लिए आप प्रायोरिटाइज करिए कौन सी टास्क इंपॉर्टेंट कौन सी नहीं है. क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है मतलब फॉरेन कंट्री में बहुत टाइम पास होता है उसमें. Yes. तो वो थोड़ा कम करना चाहिए और ऐसा मैनेज कर सकते हो. So आपने कैसे मैनेज किया तभी भी, लाइक बहुत फ्री टाइम मिलता है हमें, प्रोडक्टिव थिंग क्या करते थे? मतलब सिर्फ स्टडी ही करते थे या अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आल्सो? या देखो मैं मतलब जिम करता था, मुझे बहुत अच्छा लगा. स्पोर्ट्स, रनिंग ऐसा मैं करता था जब फ्री टाइम मिले तो. और दोस्तों के साथ बातें करता था, जो इंडिया में मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ कॉल करता था. तो थोड़ा कनेक्शन लगता है तो अच्छा लगता है. तो वो है. कुछ मैं बुक्स पढ़ता था, मुझे इंटरेस्ट मतलब है पढ़ने में तो वो करता था. घूमने जाता था, मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है रशिया. ऑफ कोर्स आपकी कजन सिटी में मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब बहुत अच्छा लगता है. तो आप फ्यूचर प्लान है आपका कोई यहाँ आने का, मतलब एज अ ट्रिप और कुछ? हाँ, अभी तो नहीं, मतलब एक बार पेंजा आऊँगा और तभी कजान भी घूम लूँगा. सो प्लीज मुझे मिलिएगा, मैं आपको प्रेस सिटी घुमाऊंगा. So approach towards the paper pattern of MCI. देखो अभी आप पैटर्न को कंपेयर करोगे नीट पीजी और MCI स्क्रीनिंग टेस्ट से, तो पर्सनली मुझे कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं लगता कि ये पेपर में ये पूछते इसमें ये था. हाँ, थोड़ा रिसेंट एडवांसेस नीट पीजी में होता है बट वो भी बहुत नहीं होता, लाइक 1-2% होगा. ठीक है, तो बहुत डिफरेंस नहीं है. जो भी प्रिपरेशन नीट पीजी के मतलब थिंकिंग से करते तो FMG में वही होता है. हाँ, सिर्फ नेगेटिव होता है सिस्टम नीट पीजी में, MCA में नहीं होता. तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है, बाकी तो मुझे बहुत डिफरेंस नहीं लगता. क्योंकि मैंने भी मैं जब प्रिपरेशन करता था MCI के लिए भी, तब मैं प्रीवियस क्वेश्चन देखता था तो मतलब बहुत डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, टॉपिक भी हम कॉमन ही रहते हैं, उसमें भी कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा होता है नीट पीजी में, बट वो आपका रैंक डिसाइडिंग नहीं होता. ये इंडिया में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्हें सीट नहीं मिल पाता मेडिकल का. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कंपटीशन है, पॉपुलेशन इशू है, बहुत सारी चीजें, उसमें हम ना जाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा उन बच्चों के लिए आप क्या मतलब रेकमेंड करेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन लीजिए और आइए, मतलब You mean after NEET UG, right? या नीट यूजी? Yeah, definitely. Why shouldn't I would say. अब फॉरेन के मतलब बहुत से एडवांटेजेस है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फॉरेन ही जाऊँ, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो यू शुड डेफिनेटली गो. बिकॉज बहुत से एडवांटेजेस ये है कि आप एक नया कंट्री देखोगे, अपने कल्चर में आप एक्सपोज होंगे, आप नए लोगों को मिलेंगे. आपका वहाँ भी आप जो भी यूनिवर्सिटी में होंगे आपको मतलब वहाँ भी डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स मिलेंगे. आपका नेटवर्क बहुत ह्यूज होगा अराउंड द वर्ल्ड. एंड it's
अभी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब मेरा नेटवर्क इंडिया में ही सीमित रहेगा, आपको बहुत कनेक्ट करना पड़ता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आपको ये बेनिफिट रहता है, आप डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है। आप मतलब जो कंट्री में हो आप वो तो सीख ही लोगे, बट आपकी कंट्री में जो दूसरे कंट्री के बच्चे हैं उसके साथ आप कम्युनिकेट करके वहाँ भी आप अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है। और दूसरी बात, अगर आप एक बार फॉरेन कंट्री से पढ़ के आते हो, इवन इन दिस एज लाइक 16-17 ईयर, 17-18 ईयर, या वो मतलब उस एज में आप अगर एक्सपोज होते हो दूसरी कंट्री में, तो वो आपको पूरी लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। आप फ्यूचर में कोई भी ऐसा कुछ है बाहर जाना, ऐसा आप मतलब डरोगी नहीं, Yes. आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। तो बहुत से और एडवांटेजेस है। tell about NEET PG 2021 paper pattern. What was your approach while solving the question? और सॉल्व करते समय आप कोई क्वेश्चन रिव्यू के लिए रखते थे आखिरी, मतलब या फिर पहले ही गो में आप सॉल्व कर देते थे उससे? ओके, तो पेपर वाज मॉडरेट टू टफ, इट वाज नॉट इजी, बट द प्रॉब्लम वाज विद दिस पेपर दैट ऑप्शंस बहुत ट्रिकी थे। मतलब तुम इजीली अगर देखो तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं मतलब मार्क करूंगा ही। बट अगर आप जब क्वेश्चन के ऑप्शंस देखोगे, तो आप जो भी चॉइस अपने माइंड में मतलब सेट करके मतलब बैठते हो कि ये करना है, तो वो चॉइस थी ही नहीं उसमें, कुछ अलग से पूछा था उन लोगों ने, तो बहुत ट्रिकी था। आपको रूल आउट, मतलब आपको अगर रूल आउट स्किल आपकी स्ट्रांग है, तो आप मतलब आंसर टिक कर सकते हो करेक्ट। और सर, हाँ, और सर उसमें एक और चीज, अगर सपोज कभी कभी चीजें हमें याद नहीं होती या फिर हम रिवाइज कर नहीं पाते, टाइम कम पड़ता है, तो तब आप क्या गेसिंग प्रेफर करोगे? मतलब कोई क्वेश्चन का आंसर आप गेस कर रहे हो, मतलब तो आपके पास अगर नेगेटिव मार्किंग तो होता ही है, लेकिन आप अगर आपको श्योर हो या फिर लाइक गेस है आपका, तो आप गेस करोगे या फिर उसे अनअटेम्प्ट रखोगे? इट विल डिपेंड चिन्मय। देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने कभी नहीं देखा, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उसको कभी मार्क नहीं मतलब अटेम्प्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं एक चॉइस भी रूल आउट कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आंसर चॉइस सी तो आंसर है ही नहीं, तो जो दूसरी चॉइस है ABD, उसमें मैं थोड़ा गैस वर्क करूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा रिस्क लूँगा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये क्यों हो सकता है, ऐसा करके रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो 200 ही है, तो आपको थोड़ा बेटर तो करना ही होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और हाँ, दूसरी बात अबाउट मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन, मैंने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए थे। इसमें 200 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मतलब एक थिंकिंग रहता है ना कि यही इतने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट मेरा मार्क्स बने। मेरा मतलब मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं 190 प्लस तो टिक करूंगा ही, 190 प्लस कुछ भी हो, कैसा भी पेपर हो। बट एग्जाम हॉल में मैंने सभी टिक कर दिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन में मतलब मुझे पता था कि मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब कोई अलग मतलब क्वेश्चन ही अलग है सिलेबस के बाद, ऐसा कोई क्वेश्चन एक भी नहीं था। तो मुझे मतलब रूल आउट कर सकता था, एक चॉइस तो मैं कर ही सकता था। ये जो मैंने आपको बोला वो 30 से 40 क्वेश्चन जो मार्क फॉर रिव्यू किए थे, तो उसमें मैं रूल आउट तो कर ही सकता था एक दो चॉइस, तो मैंने सभी अटेम्प्ट कर दिए। और आपको एग्रेसिव रहना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, वो आपको अब जब जीटी आप दोगे तो उससे आपको आइडिया है कि आपको मतलब एग्रेसिव आपके लिए बेनिफिट है कि डिफेंसिव बेनिफिट है, वो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। So how often you are solving grand tests and how many grand tests in total you have given? Were you carrying any grand test book, like जो गलत आंसर हुए उसका नोट डाउन करते थे, या फिर वैसे ही रिव्यू के लिए छोड़ देते थे, बाद में रिव्यू कर लीजिए? Okay. So the number of grand tests, I don't remember exact figure, but around it was like 50 to 60 grand tests, including FMG also. And I was giving grand tests once a month initially before giving the MC exam, and then I increased the number like 15 days one grand test, and then in the last phase I gave one GT weekly. मेरी एक कॉपी थी, एक बुक थी, जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करता था तो उसमें लिखता था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मैं बार बार उसको रॉन्ग मार्क करता था। टॉपिक इजी था, बट वो थोड़ा ऐसा होता था, मतलब सबके होता है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आप ऑलवेज उसको गलत ही मार्क करते हो, ठीक है, और भूल जाते हो या सिली मिस्टेक करते हो। तो मैं एक बुक बनाई थी, उसमें सब लिखता था सब में, और जब दूसरी जीटी होती थी उससे पहले उसको रिव्यू कर लेते। Approach to pre-clinical, paraclinical and clinical subjects.
ओके, वैसे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है आपको, मतलब नोट्स में जो है वही पढ़ना होता है। बट क्लिनिकल में ऐसा होता है कि वो कैसे डिफरेंस है पैरा क्लिनिकल से, कि क्लिनिकल में आप पेशेंट इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होता कि एक फैक्ट है आपको मतलब रट्टा मारना है। वो आप इमेजिन कर सकते हो पेशेंट जो आपने क्लिनिक्स में देखा है, जो यूजी डेज में या इंटर्नशिप में आपने जो पेशेंट देखा है, तो वो इमेजिन करके आप उसको बहुत इजीली याद कर सकते हो। ऐसा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। अब आप जब रशिया में थे, आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना प्रेफर किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया, और उसमें दोनों में से कौन सा बेहतर है? सी कोई बेहतर ऐसा नहीं, बट सब्जेक्टिव है। किसी को स्टैंडर्ड बुक अच्छी लगती है, किसी को नोट्स, किसी को मतलब यूट्यूब से, ऐसा सबके लिए डिफरेंस होता है। बट मैंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में मैं जो रशिया में वहाँ पढ़ाते थे जो भी सब्जेक्ट, तो वहाँ की बुक होती थी, वहाँ के ऑथर रशियन होते थे, तो उसका ट्रांसलेशन भी होता था इंग्लिश में, तो वो थोड़ा पढ़ता था स्टार्टिंग में। और फिर सेकंड थर्ड ईयर में मैं जो जो भी सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाते थे उसका जो इंग्लिश अपनी जो होती है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, उसमें ट्राई करता था पढ़ने का। बट ज़्यादा मैंने कंसेप्ट डॉक्टर नजीब जो विडियो है उससे Yes. क्लियर किया, मतलब बहुत ईजी हो गया था उससे। पूरा मतलब पूरा बेसिक समझ लिया था फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में, तो उसकी वजह से बहुत सा मतलब ईजी हो गया था। और उसके बाद शायद थर्ड ईयर नहीं फोर्थ ईयर में मैंने वो कैपलान जो आता है यूएसएमएल के लिए, उसकी वीडियो देखे थे, क्योंकि उन लोग की मेथड बहुत अच्छी होती है पढ़ाने की, तो उससे भी बहुत कंसेप्ट मेरे क्लियर हुए थे। और देन तो प्रेप लेटर मैंने लिया था, तो उसके वीडियो देखता था, एमसीक्यू नोट्स करता था। जब एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब मैं मतलब मैं क्यूबिंग नहीं कर रहा था, मतलब क्योंकि टाइम बहुत कम था, और मेरे कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ कंसेप्ट वीक थे, जैसे फॉरेंसिक है, ऐसे सब्जेक्ट फॉरेंसिक पढ़ाते हैं, बट जो हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव है उसके हाँ थोड़ा डिफरेंस होता है। तो तो वो कंसेप्ट मेरे बहुत वीक थे, तो मेरा फोकस तब वीडियो पे ही था एफएमजी के पहले। तब मैं क्यूबैंक ऑलमोस्ट सॉल्व की ही नहीं, ऐसा बोला तो भी ठीक है। और तब मैं क्वेश्चन एफएमजी सॉल्यूशन होता है उससे कभी कभी करता था, और रैपिड रिवीजन में लास्ट में किया था। हाँ, बट जब मैंने पीजी के लिए प्रिपेयर किया, नीट पीजी के लिए, तब पूरा फोकस मेरा क्यूबिंग पे ही था, क्योंकि वीडियो मैंने सब देख लिए थे, और नोट्स तो मैंने वही रखी थी जो मैं एफएमजी के लिए कर रहा था। थोड़ा जो भी क्यूबिंग में मुझे नया मिलता था, कोई जीटी में नया मिलता था, या फिर हाँ कुछ वीडियो अपडेटेड भी थे प्रेप में, तो अपडेट वाले वीडियो में देखता था। और अगर कुछ नया होता है और मुझे लगे कि मतलब टीचर बोले कि ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो मैं वो ऐड करता देता उसमें नोट, बस वही पता। तो हाँ, क्यूबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब रेगुलर करना ही पड़ेगा। क्यूबिंग से आपको आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब लास्ट मंथ के मतलब लास्ट स्टेज में थे, लास्ट मंथ में थे, तब आपका स्ट्रेटेजी क्या था? और फिर मतलब मोस्टली लास्ट मंथ आपका कैसा रहा बिफोर द एग्जाम, और डे बिफोर द एग्जाम कैसा रहा? कुछ शेयर कीजिए। ओके, यू मीन लास्ट मंथ एंड लास्ट डे डे बिफोर द एग्जाम? ओके, देखो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है कि आप तब क्या करोगे। आप लास्ट में नहीं सोच सकते कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप अटेंड करते हो, लाइव क्लासेस हो या ऐप हो, एनीथिंग, तब सभी टीचर बोलते हैं मतलब कोई भी जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये बार बार पूछा गया है, ये मतलब ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आप उसको हाईलाइट करोगे, ठीक है। कोई भी हाईलाइटर से या आप मार्क कर दो उसको। जब लास्ट मंथ होता है तो उसमें आप वही चीज़ पढ़ो जो आपने मार्क की है, हाईलाइट की है, ठीक है। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि टीचर ने बोला है, और उसको उन लोग को तो एक्सपीरियंस होता है, तो वो बहुत से क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं, तो आप वो पढ़ो। और हाँ, बिफोर द एग्जाम लास्ट डे आपको तब वो आपने जो नोट बनाए हैं जीटी के, जो मैंने आपको आगे बोला कि जो आप उसमें आप नोट डाउन करते हो, आप कौन सी सिली मिस्टेक रिपीट करते हो, या कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार सब जीटी में आते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो लास्ट में। या फिर आपने कोई अलग बुक बनाए हो, मतलब थोड़ी फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, तो हाँ। और हाँ, दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो एग्जाम का पहले का दिन होता है उसमें आप ब्रेन को बहुत स्ट्रेस मत दो। अगर आप कुछ दिन कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, तो अभी ठीक है, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये पर्सनली है, सब्जेक्टिव बहुत सब्जेक्टिव, सबके लिए अलग हो सकता है। बट जो मैंने फील किया दोनों एग्जाम में, मैंने यूपीएससी एग्जाम भी दी थी, यूपीएससी एमएस, तो ये तीनों एग्जाम है, मैंने ये थोड़ा मतलब अपने बारे में जाना कि अगर मैं एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा नहीं कुछ मिनट, थोड़ा बहुत पढ़ो मॉर्निंग में, फिर रिलैक्स हो जाओ। आप कुछ गेम भी मतलब स्पोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, तो उससे आपका ब्रेन एग्जाम में बहुत अलर्ट होता है। क्योंकि अभी जो एग्जाम आती है वो टोटली फैक्ट बेस्ड नहीं होती है, आपको मतलब आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। अगर आप अगले दिन ही पूरा उसको फटिक दे दोगे, मतलब बहुत सारा पढ़ लिया, तो थक जाएगा, ठीक है। तो एनालिटिक स्किल थोड़ी उसमें इफेक्ट आता है। हाँ, पहले की एग्जाम थी जो ओनली फैक्ट बेस्ड होती थी, उसमें ठीक है आप पढ़ लो, मतलब सब रट्टा मार लो,
उसके पहला दिन ही, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको ब्रेन को थोड़ा आराम देना है। और एग्जाम के डे तो कुछ मत पढ़ो मॉर्निंग में, कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स रहो, आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, कुछ भी। And what's your take on integrated learning versus individual subject completion? इंटीग्रेटेड लर्निंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, बिकॉज अभी ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन है, आप मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन पैथोलॉजी में से, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, मतलब सब कंबाइन आता है, तो इंटीग्रेट तो करना ही है। बट अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज करना है कि ये सब्जेक्ट खत्म हुआ उसके बाद ये सब्जेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि इंटीग्रेट करने में आप कुछ जो टॉपिक है वो आप मिस कर देते हो, और वो थोड़ा वो कंप्लीशन वाला फील नहीं आता कि मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको ऐसा लगता है यार ये तो रह गया, वो रह गया, तो कॉन्फिडेंस भी उस पर भी इफेक्ट होता है। तो हाँ, आप अर्ली फेज में कर सकते हो इंटीग्रेटेड लर्निंग कि 2-3 सब्जेक्ट साथ में सिस्टम वाइज यू मीन वो पढ़ सकते हो आप। बट अगर आप प्रॉपर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मतलब लेटर फेज ऑफ प्रिपरेशन लाइक 5th ईयर 6th ईयर, तो आप सब्जेक्ट वाइज ही करो, ये सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद ये सब्जेक्ट, उसके बाद ये सब्जेक्ट, ऐसा आप कर सकते हो। और सर मुझे मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आपने एनाटॉमी कैसे याद रखी, इतना पूरा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो फिर से रिवाइज नहीं कर सकते, जो नोट्स है वही कर पाएंगे, तभी भी आपका रिवाइज करने का तरीका क्या था? मतलब एनाटॉमी हो या फिर कोई भी बेसिक क्लिनिकल बेसिक सब्जेक्ट्स हो, जैसे बायोकेम, फिर अपना फार्मा है, फिजियोलॉजी, ये सब याद रखने वाले सब्जेक्ट्स, इसे कैसे याद रखें और कम टाइम में रिवीजन कैसे किया? ओके, तो एनाटॉमी सब्जेक्ट ऐसा था कि मेरा लास्ट ईयर तक वीक ही था, मतलब मुझे ऐसा नहीं पसंद नहीं था, पसंद था, बट मैं याद ही नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं उसको सही तरीके से पढ़ता ही नहीं था। बट जब मैंने राजेश कौशल सर की एनाटॉमी जो पैराप्लेटर में है वो जब पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ना यार, ये सब्जेक्ट सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जो उन सर ने बहुत अच्छे से वो पढ़ाए थे। नो डाउट सर की वीडियो बहुत बड़ी होती है, बट वो बहुत मतलब मेरी एनाटॉमी एकदम स्ट्रांग हो गई। उसके बाद कोई भी जीटी में मेरा वीक नहीं आया था, एनाटॉमी स्ट्रांग ही आता था, क्योंकि इस तरीके से पढ़ा था कंसेप्ट बेस की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये कहाँ काम लग सकता है ये क्लिनिक में। तो ऐसा है, आपको मतलब सब्जेक्ट को अप्रोच ऐसा करना है कि ये एक्चुअल लाइफ में कैसे, अब मतलब कोई भी टॉपोग्राफी है बॉडी की, ठीक है, अगर आप सिर्फ पढ़ लोगे कि इसमें ये है उसमें वो है, तो आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। पर अगर आप उसका मतलब इसको यूज़ क्या है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो अगर आप पढ़ ले तो आपको ईजी हो जाता है क्लिनिकल रिलेशन, राइट? एग्जैक्टली। और रही बात दूसरे सब्जेक्ट की, लाइक तुमने बोला कि बायोकेमिस्ट्री ऐसा, तो इन सब्जेक्ट में आप एक काम करो, प्रीवियस से क्वेश्चन देख लो लास्ट 5 या 6 ईयर के, उसमें से आपको आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अगर आप 10 में से भी अगर 6-7 क्वेश्चन आप सही टिक करते हो तो मतलब गुड, अच्छा। रिपीटेशन, यस, ये सब्जेक्ट में आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। Who played major role in your success, mom or dad, with whom you want to share your success? डेफिनेटली बोथ माय पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने जो एटमॉस्फेयर मुझे दिया था, मतलब स्पेशल जब रशिया पढ़ने के लिए जाना, मतलब उस टाइम तो उन पे डिपेंडेंट होते हैं हम लोग, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया था, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा था हम पे कि नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे जो पैसे वेस्ट हो जाएंगे या वहाँ भेज रहा हूँ। तो या फाइनेंशियल सपोर्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज, तो और मेंटल सपोर्ट भी मतलब बहुत किया था मुझे, एफएमजी में भी और नीट पीजी में भी। और मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे 4-5 फ्रेंड्स है, बहुत क्लोज है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उन्होंने सब सपोर्ट किया था। और मैं तो 2-2, 3-3 घंटे तक बात करता था, इवन डे बिफोर द एग्जाम भी, ऐसा मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और सर मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगा, मतलब आप जब पेंजा यूनिवर्सिटी में थे, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको लगा यार, मतलब जिसने आपको बदल के रखा हो कि अब तो मैं करके ही रहूँगा? क्योंकि कभी कभी होता है, हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो हमें पता नहीं होता क्या करना है, हम नॉर्मली गो विथ फ्लो जाते हैं, जब थर्ड ईयर आता है फिर पता चलता है, लाइक पैथ एनाटॉमी, पैथ फिजियो लगता है, सो डिफिकल्ट होते जाता है सब्जेक्ट। सो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस कोई टीचर के साथ या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? देखो, इनिशियली मेरा माइंडसेट ऐसा था कि जो एग्ज़ाम होती है, यूएसएमएल है, एमआरसीपी है, कुछ भी, तो बहुत टफ होती है। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये तो हम नहीं कर सकते यार, बहुत टफ होती है, हमको बस एमसीए पे फोकस करना है। बट जब मैं स्टडी करता गया ग्रेजुअली, तो मैं रैंडम क्वेश्चन देखता था यूएसएमएल के और नीट पीजी के, तो बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते थे, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं आता। तो वो मुझे मोटिवेट करता था ज़्यादा पढ़ने में कि भाई अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इनफ है, मतलब
इंपॉर्टेंट, मतलब इनफ है कि हम ये एग्जाम भी क्लियर कर सकते, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे देता था। ठीक है, तो ये एक दिन क्या हुआ था कि हमारी एंडोक्राइन की साइकिल चल रही थी, मेडिसिन की। Yes. तो तब हम हमको प्रोफेसर ने बोला कि चलो सब जाओ, सबको पेशेंट दे दिया, आपका ये पेशेंट, आपका ये, आप जाओ हिस्ट्री लो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करो और आधे घंटे में आप मुझे रिपोर्टिंग करो। ठीक है, तो तब मैं गया, हम लोग पेशेंट के पास गए थे। तो बाकी के जो मतलब ग्रुप में थे वो थोड़ा थक गए थे, मतलब फट गया था, तो वो कैंटीन में चले गए। बट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया था उस दिन, पूरी हिस्ट्री निकाली थी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया था। तो वो जो मैम थे, तत्यना शिपाई नाम है उनका, तो उनके पास गया, तो फिर उन्होंने देखा पूरा हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो बहुत इंप्रेस हो गए कि यार वेरी परफेक्ट, मतलब पहले तुमने किया है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। फिर दूसरे सब आए तो सबका देखा, पर उनका मेरा बहुत अच्छा लगा था कि तब उन्होंने बोला था कि तू बहुत आगे बढ़ेगा, मतलब बहुत पोटेंशियल है, ऐसा बोला था। तो वो बोला, बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए। ऐसा बहुत से है, बट Are you satisfied now, or still you feel something is missing? satisfied in the sense of the examination, right? This Yeah, rank or no, in life in general, you can say anything. लाइफ में तो कोई सेटिस्फाइड नहीं होता यार तो सबको कुछ ना कुछ करना ही होता है। बट हाँ, अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो बहुत सेटिस्फेक्शन है मुझे, ये बस अभी निकल जाना है मुझे, अभी कुछ लाइफ के कुछ और अदर एस्पेक्ट्स है, उसमें थोड़ा ध्यान देना है, अभी सिर्फ स्टडी तो बहुत हो गया, तो यस बहुत सेटिस्फेक्शन। तो पहले कुछ समय पहले इंटरव्यू देते समय बोला कि यूपीएससी सीएमएस का एग्जाम दिया, थोड़ा उसके बारे में Okay. शेयर करना चाहेंगे, मतलब क्या होता है, कैसा होता ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इंडिया की, उसके जो भी अस्पताल होते हैं, रेलवे होती है और दिल्ली की म्यूनसिपालिटी होती है और थोड़ा फैक्ट्री उसका कुछ होता है, तो उनमें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए वो एग्ज़ाम होती है। तो मैंने एग्ज़ाम इसलिए दी थी क्योंकि मेरे एक सीनियर ने बोला था, क्योंकि देखो क्या हुआ था कि मैं उनसे बात कर रहा था सीनियर से कि भाई मैं ये जीटी दे रहा हूँ, उसमें मेरा ये स्कोर आ रहा है, वो आ रहा है, क्योंकि प्रेप लेवल में मेरा ऑलमोस्ट रैंक मेरा टॉप 100 में था ही, टॉप 100, टॉप 150, कभी 500 से नीचे नहीं गया। तो मैं बोल रहा था कि ये तो मतलब मुझे थोड़ा स्यूडो कॉन्फिडेंस लगता है कि इतना अच्छा रैंक थोड़ी होता है, हो सकता है मतलब ऐसा। Yes. और दूसरे प्लेटफॉर्म में देता था तो मेरा रैंक टॉप 1000, टॉप 2000 ऐसा रहता था उसके बीच, तो मतलब बहुत डिफरेंस था। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तू जो अभी यूपीएससी एग्जाम आ रही है वो दे दे, क्योंकि वो पेपर बहुत स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में थोड़ा बायस होता है कि जिन्होंने वहाँ से पढ़ा है तो उनके मार्क वहाँ मतलब अच्छे आने वाले। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अभी यूपीएससी सीएमएस एग्जाम आ रही है तो वो दे दे, उसको मतलब तुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा एग्जाम कैसी होती है ऐसा, और नेगेटिव मार्किंग वाली भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्योंकि एफएमजी में तो नेगेटिव होता नहीं है, तो हमको मतलब आइडिया नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि एग्जाम दे दे, तो मैंने वो एग्जाम दे दी, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 या 50,000 बच्चे देते हैं पूरे इंडिया में, तो इसलिए मैंने वो दी थी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए। मैसेज फॉर देम हु डिडंट गेट नीट यूजी सीट इन इंडिया, एनी स्पेशल मैसेज फॉर देम, बिकॉज समटाइम क्या होता है, उन्हें लगता है कि यही है, मतलब जो है वो नीट यूजी ही है, इसके बाद हमारा कुछ होने नहीं वाला। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम होती है, नीट पीजी हो या यूजी हो, उसमें मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके पास नॉलेज नहीं है इसलिए आपका रैंक कम आया, उसमें बहुत से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लाइक ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपका माइंडसेट क्या था, आपका मतलब अगर आपको एक कॉमन कोल्ड भी होता है तो भी थोड़ा इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं क्या आएगा ही, बट मतलब बहुत से फैक्टर है, ऐसा नहीं कि आपकी नॉलेज ही कम है, कि आप मतलब लायक नहीं हो इसके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बिल्कुल डिप्रेस मत हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और या अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर जाने का या ऐसा कुछ करने का तो आप जाओ यार, डेफिनेटली कैन शुड गो। बट आप 1-2 मार्क की वजह से मतलब आपका एडमिशन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट में यहाँ पे, तो आप ड्रॉप ही ले सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको बाहर जाना है तो यार उसमें कोई हार्म नहीं है। आप हाँ, थोड़ा आपको यूनिवर्सिटी सर्च करना पड़ेगा कैसी है, क्या है, सीनियर से कांटेक्ट कर, बट या यू शुड गो, not you should go but you can go. Message for students who gonna give upcoming PG entrance exams, क्योंकि 4 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, so उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं एक मैसेज जो मैंने पर्सनली फील किया है कि आप जीटी मतलब सभी अभी जीटी देंगे, ठीक है, सभी लोग, तो उसका मार्क बहुत फ्लक्चुएट होगा। तो अगर आप बम मार्क आएगा, रैंक अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल उस पर फोकस मत करो, बस जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं उस पर फोकस करो, इम्प्रूव करो, जो आप रिपीटेडली मिस्टेक कर रहे हो वो ना हो, और ज़्यादा फोकस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रखो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब टॉपिक वही रिपीट हो गया है, नो डाउट डायरेक्ट तो नहीं हो गया बट टॉपिक वही रहता है, तो आप वो टॉपिक पे फोकस करो और रिवीजन ज़्यादा करो। अभी नया कुछ मत पढ़ो, अगर हो सके तो बट ओके आप पढ़ सकते हो नया भी, ऐसा नहीं है, बट आपको ऐसा गोल रखना है कि बिफोर एग्जाम में 2 बार जो भी पढ़ा है मैं रिवाइज कर लूँ, 2 बार मिनिमम, ज़्यादा हो तो इट्स ओके, बट 2 बार तो मिनिमम रिवाइज करना ही है। उस तरीके से आप उसको शेड्यूल बनाओ और पढ़ो, और ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे।
In which field you are interested? देखो मैं पहले से ही मुझे मेडिसिन लेना था, अगर वो कोई भी हो, एमडी हो या डीएनपी, डजंट मैटर, तो मुझे वो लेना थे, तो एमडी मेडिसिन मुझे मतलब इंटरेस्ट है उसमें। So before summing up the video, मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि आप बहुत हम्बल थे, और यही हम्बल नेचर रखना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के साथ भी बात किया जिनका रिजल्ट आया, उन्होंने एटलीस्ट रिप्लाई तक नहीं किया। सो थैंक्स फॉर मैं दैट। ये मैं खुद रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि ऐसा मैं कभी नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। स्टेबल कैसा रहा जाए लाइफ में, बिकॉज मैं जनरली, मेरी पर्सनैलिटी जो है, मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ जनरली, कोई भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता हूँ। सो ये गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कोई 2 लाइनें या फिर कुछ कहना चाहोगे आप, 2 एक्सपीरियंसेस या फिर कुछ भी? मैंने एक बुक पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो स्टीफन कोवन ने लिखी है। तो तो उनमें स्टार्टिंग में ही एक कॉन्सेप्ट है, वो थॉट ऑफ पैराडिम का। पैराडिम मतलब जो 6 होता है, नंबर 6, वो आप यहाँ से देखोगे 6 लगेगा, वहाँ से देखो तो आपको 9 लिखेगा। ठीक है। तो अभी भी आपको गुस्सा है कि यार थोड़ा इरिटेशन हुए, तो आप उसको मतलब माइंड को पूरा ब्लैंक कर दो और सोचो कि वो सामने वाला क्या मतलब सोच रहा है, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा बोल रहा है। ठीक है, उसके कुछ रीजन होंगे, उसके भी कुछ पॉइंट होंगे। अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो आपको लगे नहीं यार, उसका गुस्सा भी जायज़ है, हो सकता है अगर मैं उसकी जगह पे होगा तो उसको भी आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा कम ही हो जाएगा। I rest with my questions, sir. And it was a very nice podcast. And I thank you that you have accepted our invitation and came here. So before going, last but not the least, how was your experience on being my podcast? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बात करके, क्योंकि अगर ये वीडियो देख के इवन वन स्टूडेंट कैन परफॉर्म वेल इन एग्जाम और वो मोटिवेट हो जाए, तो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारी कम्युनिटी में से अगर कोई करता है, मतलब ऐसे एग्जाम क्रैक करता है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा वैलिडेशन भी मिलता है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छा ही है। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये मेरे इंटरव्यू में से आप जो भी आप सीखे, तो उसको डायरेक्ट मत अप्लाई करो, क्योंकि जो मेरे लिए सही था वो आपके लिए सही ना भी हो। ठीक है, क्योंकि सबकी अलग पैटर्न होती है। हाँ, अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है आप सीख सकते हो, बट कभी भी किसी को ब्लाइंडली मत फॉलो करो कि भाई वो भैया या वो दीदी ने ऐसा किया था तो हम बस वही करेंगे, कि उन्होंने ये ऐप ली थी मैं भी यही ऐप लूंगा, वो सुबह पढ़ते मैं भी सुबह पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब सभी के लिए मतलब बहुत डिफरेंस है, सबकी जो पैटर्न होती है आप उसके हिसाब से आप करो। ठीक है, और किसी की मत सुनो, कोई जो नेगेटिव बोल रहा है कि तू नहीं कर सकता, वो हमसे नहीं हो सकता, उसको भाई तू जा, तू मत करना, मैं तो करूंगा। ठीक है, तो ऐसा आप माइंड सेट रखो, होता है, हो जाएगा सब।